ایک دن کی بات ہے، کبوتر اپنے 3 بچوں کے ساتھ میں ایک جنگل میں رہتی تھی۔ جس جنگل میں کبوتر رہتی تھی اس جنگل میں اکال پڑ گیا تھا۔ پھر کبوتر اپنے تینوں بچوں سے بولتی ہے، بیٹا، ہم لوگ کو یہ جنگل چھوڑنا ہوگا۔ اس جنگل میں سارے کے سارے پیڑ پودے سوکھ گئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو سر ڈھکنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس جنگل میں جہاں دیکھ رہی ہوں وہاں دھوپ ہے۔ اب اس جنگل میں بھوجن بھی نہیں بچا ہے۔ بھوجن کی بات تو دور ہے بیٹا، پیاس بجھانے کی پانی بھی سوکھ گیا ہے۔ ہاں ماں، آپ صحیح بول رہی ہیں۔ اس جنگل کو ہم لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ چلیے ماں، اس جنگل کو چھوڑ کر ٹونی چڑیا کے پاس۔ اس کے جنگل بہت ہرے بھرے ہیں، شاید ہم لوگ کو تھوڑی سی جگہ دے دے رہنے کی۔ ہاں بیٹا، تم صحیح بول رہی ہو۔ چلو ٹونی چڑیا سے بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ ہم لوگ کو تھوڑی سی جگہ دے دے رہنے کی۔ چلو بیٹا۔ پھر کبوتر اپنے بچوں کو لے کر ٹونی چڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پھر کبوتر بولتی ہے ٹونی چڑیا سے، ٹونی بہن، ہم لوگ کو تھوڑی سی جگہ دے دو ٹونی، رہنے کی۔ ہمارے جنگل میں اکال پڑ گیا ہے ٹونی، ہمارے بچے بھی ساتھ میں ہیں ٹونی، ہمارے جنگل میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے ٹونی۔ اور تو اور ٹونی، ہمارے جنگل میں پیاس بجھانے کی پانی بھی نہیں ہے، وہ بھی سب کے سب سوکھ گئے ہیں ٹونی۔ مجھ پہ دیا کرو ٹونی، میں بھیک مانگتی ہوں، میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئی ہوں، تمہارے پاس رہنے کی جگہ دے دو ٹونی۔ یہ رونا دھونا بند کرو تم لوسی، ہمارے جنگل میں تم کیوں آئی ہو؟ تمہارے جنگل میں اکال پڑا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میرے جنگل میں سبھی کبھی تم نکل جاؤ، سمجھی تو؟ ایسا مت بولو ٹونی، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پہ دیا کرو ٹونی، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں ٹونی، تھوڑی سی جگہ دے دو ٹونی رہنے کی۔ تمہیں ایک بار میں سنائی نہیں دیا میں کیا بولی؟ تم اپنے بچوں کو لے کر ابھی کبھی نکل جاؤ میرے جنگل سے۔ ٹھیک ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نکل جاتی ہوں اپنے بچوں کو لے کر۔ چلو بچوں، یہ ٹونی گھمنڈی پکچھی ہے، ہم لوگ طوطے سے مدد مانگ کر دیکھتے ہیں، شاید ہم لوگ کو سہارا دے دے۔ چلو بچوں۔ پھر کبوتر اپنے بچے کو ساتھ میں طوطے کے پاس لے کر جاتی ہے۔ پھر کبوتر بولتی ہے طوطے سے، میٹھو طوطے، تم اپنے جنگل میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں اپنے بچوں کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں یہاں، اور تو اور میں یہاں رہ بھی سکتی ہوں۔ میں جس جنگل میں رہتی تھی اس جنگل میں اکال پڑ گیا ہے، وہاں کے سارے پیڑ پودے سوکھ گئے ہیں میٹھو طوطے، اور تو اور میٹھو طوطے، وہاں پیاس بجھانے کی پانی بھی نہیں ہے، رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دو میٹھو طوطے۔ میں اپنے 3 بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں؟ میں ٹونی چڑیا کے پاس گئی تھی، وہ مجھے بھگا دی، مجھ پر دیا کرو میٹھو طوطے۔ کیا بولی تو؟ پھر سے ذرا بول۔ میں تجھے اس جنگل میں تھوڑی سی جگہ دے دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تجھے اپنے جنگل میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دوں گی، یہ میرا جنگل ہے، میں اس جنگل میں اکیلی رہتی ہوں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ میں میرے حصے کا بھوجن کھانے آ گئی؟ ابھی کے ابھی نکل جاؤ تم میرے جنگل سے، سمجھی تو؟ ٹھیک ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں چلی جاؤں گی، پر میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا میٹھو طوطا بہت اچھا ہے، وہ سب کی نقل کرتی ہے اور پھل سبزیاں کھاتی ہے اور ٹائیں ٹائیں کرتی ہے۔ آج پتہ چلا تم ٹائیں ٹائیں نہیں کرتی ہو، تم شیر کی طرح دہاڑتی، صرف تم جنگل میں اکیلے ہی راج کرنا چاہتی ہو، سمجھی تو میٹھو طوطے؟ تم دیکھنے میں ہرے سبزی کی طرح ہو، پر تمہارا دل دم کوئلہ جیسا کالا ہے، مطلبی ہو تم، مطلبی، سمجھی تم؟ چلو بچوں یہاں سے کوے کے پاس، شاید وہ ہماری مدد کر دے، یہ طوطے ہماری مدد نہیں کی، چلو بچوں۔ پھر کبوتر اپنے بچوں کو لے کر کوے کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر کبوتر بولتی ہے کوے سے، بلبل بہن، آپ مجھے اور میرے بچوں کو تھوڑی سی اپنے جنگل میں رہنے کی جگہ دے دیجیے بلبل بہن، میں آپ سے مدد مانگنے نہیں آتی، میرا ابھی بہت خراب دن چل رہا ہے بلبل بہن۔ وہ کیا ہے نا بلبل بہن، جس جنگل میں میں رہتی تھی اس جنگل میں اکال پڑ گیا ہے، اور اس جنگل کے سارے پیڑ پودے سوکھ گئے ہیں بلبل بہن،
उस जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है बुलबुल बहन। और तो और बुलबुल बहन, उस जंगल में प्यास बुझाना भी बहुत मुश्किल हो गया है बुलबुल बहन। उस जंगल में पूरा पानी ही सूख गया है। आप मेरी मदद कीजिए बुलबुल बहन, मैं बहुत भटक रही हूँ। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं बुलबुल बहन। आप अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए रहने की बुलबुल बहन। मुझ पे दया कीजिए बुलबुल बहन। क्या बोली तू? मैं अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दूं? मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। तुम चारों मिलकर मेरे हिस्से का भोजन जल्दी खत्म कर दोगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? फिर तो मेरा भी हालात तुम्हारे ही जैसा हो जाएगा। यहाँ से तुम लोग जल्दी भागो, मैं अपने जंगल में नहीं दूंगी जगह, समझी तुम? अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से निकल पड़ो। अगर जल्दी यहाँ से नहीं गई तो फिर तुम्हारा पंख पकड़कर जमीन पर घिसटते घिसटते बाहर निकाल दूंगी, समझ गई ना तुम? बुलबुल बहन, मैं ये सोचकर आई थी तुम मेरा सहारा बनोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें तो ये काले रंग पर बहुत ज्यादा ही घमंड है। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। काली बुलबुल, तुम रहना अकेले इस जंगल में। काली बुलबुल, क्या बोली तू मुझे? काली? तुम्हारा गोरा रंग है ना, अपना गोरा रंग तू अपने पास ही रख और यहाँ से निकल जाओ मेरे जंगल से। अरे काली बुलबुल, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जा रही हूँ मुनमुन के पास, वो मुझे सहारा जरूर देगी। फिर कबूतर अपने बच्चों के साथ में मुनमुन चिड़िया के पास जाती है। फिर मुनमुन से बोलती है कबूतर, मुनमुन बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मुनमुन बहन, मेरी मदद करो मुनमुन। वो दरअसल क्या है ना, जिस जंगल में हम लोग रहते थे उस जंगल में अकाल पड़ गया है। उस जंगल के पेड़ पौधे सारे के सारे सूख गए हैं। वहाँ प्यास बुझाने की पानी भी नहीं है। मेरी मदद करो मुनमुन बहन। हम लोग 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग बुलबुल टूनी तोता के पास गए थे, वो मुझे डांट कर भगा दिए अपने जंगल में से। मेरी मदद करो मुनमुन, मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दो मुनमुन। मेरे बच्चे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए मुनमुन, मेरी मदद करो मुनमुन। अरे लूसी बहन, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो लोग नहीं किए तो क्या, मैं करूंगी तुम्हारी सहायता। मैं अभी लेकर के आती हूँ फल तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं ना, मैं अभी आती हूँ लेकर बगीचे से ये फल। मेरा इंतजार करना तुम। फिर मुनमुन चिड़िया फल लाने बगीचे में निकल जाती है। फिर बोलती है मुनमुन, मैं लूसी के बच्चों के लिए ज्यादा भोजन लेकर जाऊंगी। ये बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं। वो तीनों पक्षी कितने बदमाश हैं। इस दुनिया में सिर्फ मतलबी हैं, केवल सब अपने बारे में ही सोचते हैं। ये फल लेकर जाती हूँ जल्दी, उन बच्चों को जोर से भूख लगी होगी। फिर मुनमुन चिड़िया फल लेकर कबूतर के पास आ जाती है। फिर बोलती है मुनमुन कबूतर से, ये लो लूसी, अपने बच्चों को फल दो खाने के लिए। तुम्हारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं ना? हाँ मुनमुन, अभी मैं बोलती हूँ अपने बच्चों को खाने के लिए। बेटा, तुम तीनों ये फल खा लो, तुम लोग को अच्छा लगेगा खाने के बाद। ये लो बेटा, तुम लोग खाओ ये फल। हाँ माँ, अभी मैं खाती हूँ ये फल। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है माँ। चलो बहन, ये फल खाते हैं हम लोग। फिर तीनों बच्चे फल खाने लगते हैं। खाकर बोलते हैं अपनी माँ से, माँ, ये फल खाकर बहुत अच्छा लगा माँ। मुनमुन आंटी से बोलिए ना माँ कि हम लोग इसी जंगल में अब रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। बोलिए ना माँ। मुनमुन, हम लोग को इस जंगल से बाहर मत निकालना मुनमुन। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है अपना कहने वाला मुनमुन। लूसी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी इस जंगल से। तुम मेरे साथ में ही रहना अब से, ठीक है लूसी बहन, अपने बच्चों को लेकर। क्या मुनमुन बहन, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मुनमुन। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि तुम मुझे इस जंगल से नहीं निकालोगी। और हाँ, हम लोग एक दूसरे को हर सुख दुख में साथ देंगे, ठीक है मुनमुन? हाँ लूसी, अब हम लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे खुशी खुशी से, और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे।
एक दिन की बात है। कबूतर अपने 3 बच्चों के साथ में एक जंगल में रहती थी। जिस जंगल में कबूतर रहती थी, उस जंगल में अकाल पड़ गया था। फिर कबूतर अपने तीनों बच्चों से बोलती है, बेटा, हम लोग को ये जंगल छोड़ना होगा। इस जंगल में सारे के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब हम लोगों को सर ढकने की भी जगह नहीं है। इस जंगल में जहाँ देख रही हूँ वहाँ धूप है। अब इस जंगल में भोजन भी नहीं बचा है। भोजन की बात तो दूर है बेटा, प्यास बुझाने की पानी भी सूख गया है। हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। इस जंगल को हम लोगों को छोड़कर जाना ही होगा। चलिए माँ, इस जंगल को छोड़कर टूनी चिड़िया के पास। उसके जंगल बहुत हरे भरे हैं, शायद हम लोग को थोड़ी सी जगह दे दे रहने की। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। चलो टूनी चिड़िया से बात करके देखती हूँ, शायद वो हम लोग को थोड़ी सी जगह दे दे रहने की। चलो बेटा। फिर कबूतर अपने बच्चों को लेकर टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। फिर कबूतर बोलती है टूनी चिड़िया से, टूनी बहन, हम लोग को थोड़ी सी जगह दे दो टूनी, रहने की। हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है टूनी, हमारे बच्चे भी साथ में हैं टूनी। हमारे जंगल में अब कुछ भी नहीं बचा है टूनी। और तो और टूनी, हमारे जंगल में प्यास बुझाने की पानी भी नहीं है, वो भी सबके सब सूख गए हैं टूनी। मुझ पे दया करो टूनी, मैं भीख मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर के आई हूँ, तुम्हारे पास रहने की जगह दे दो टूनी। ये रोना धोना बंद करो तुम लूसी। हमारे जंगल में तुम क्यों आई हो? तुम्हारे जंगल में अकाल पड़ा है तो फिर मैं क्या करूं? मेरे जंगल में से अभी कभी तुम निकल जाओ, समझी तू? ऐसा मत बोलो टूनी, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझ पे दया करो टूनी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ टूनी, थोड़ी सी जगह दे दो टूनी रहने की। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया मैं क्या बोली? तुम अपने बच्चों को लेकर अभी कभी निकल जाओ मेरे जंगल से। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं निकल जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर। चलो बच्चों, ये टूनी घमंडी पक्षी है, हम लोग तोते से मदद मांग कर देखते हैं, शायद हम लोग को सहारा दे दे। चलो बच्चों। फिर कबूतर अपने बच्चे को साथ में तोते के पास लेकर जाती है। फिर कबूतर बोलती है तोते से, मीठू तोते, तुम अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं अपने बच्चों के साथ में लेकर आई हूँ यहाँ, और तो और मैं यहाँ रह भी सकती हूँ। मैं जिस जंगल में रहती थी उस जंगल में अकाल पड़ गया है, वहाँ के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं मीठू तोते। और तो और मीठू तोते, वहाँ प्यास बुझाने की पानी भी नहीं है, रहने की थोड़ी सी जगह दे दो मीठू तोते। मैं अपने 3 बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊँ? मैं टूनी चिड़िया के पास गई थी, वो मुझे भगा दी। मुझ पर दया करो मीठू तोते। क्या बोली तू? फिर से जरा बोल। मैं तुझे इस जंगल में थोड़ी सी जगह दे दूँ? ये कभी नहीं हो सकता है। मैं तुझे अपने जंगल में थोड़ी सी भी जगह नहीं दूंगी। ये मेरा जंगल है, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। तू अपने बच्चों के साथ में मेरे हिस्से का भोजन खाने आ गई। अभी के अभी निकल जाओ तू मेरे जंगल से, समझी तू? ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं चली जाऊंगी, पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मीठू तोता बहुत अच्छा है। वो सबकी नकल करती है और फल सब्जियां खाती है और टाई टाई करती है। आज पता चला तुम टाई टाई नहीं करती हो, तुम शेर की तरह दहाड़ती हो दहाड़ती। सिर्फ तुम जंगल में अकेले ही राज करना चाहती हो, समझी तू मीठू तोते? तुम दिखने में हरे सब्जी की तरह हो, पर तुम्हारा दिल दम कोयला जैसा काला है। मतलबी हो तुम, मतलबी, समझी तुम? चलो बच्चों यहाँ से कौवे के पास, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये तोते हमारी मदद नहीं की। चलो बच्चों। फिर कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे के पास पहुंचती है। फिर कबूतर बोलती है कौवे से, बुलबुल बहन, आप मुझे और मेरे बच्चों को थोड़ी सी अपने जंगल में रहने की जगह दे दीजिए बुलबुल बहन। मैं आपसे मदद मांगने नहीं आती, मेरा अभी बहुत खराब दिन चल रहा है बुलबुल बहन। वो क्या है ना बुलबुल बहन, जिस जंगल में मैं रहती थी उस जंगल में अकाल पड़ गया है और उस जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं बुलबुल बहन।
उस जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है बुलबुल बहन। और तो और बुलबुल बहन, उस जंगल में प्यास बुझाना भी बहुत मुश्किल हो गया है बुलबुल बहन। उस जंगल में पूरा पानी ही सूख गया है। आप मेरी मदद कीजिए बुलबुल बहन, मैं बहुत भटक रही हूँ। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं बुलबुल बहन। आप अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए रहने की बुलबुल बहन। मुझ पे दया कीजिए बुलबुल बहन। क्या बोली तू? मैं अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दूं? मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। तुम चारों मिलकर मेरे हिस्से का भोजन जल्दी खत्म कर दोगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? फिर तो मेरा भी हालात तुम्हारे ही जैसा हो जाएगा। यहाँ से तुम लोग जल्दी भागो, मैं अपने जंगल में नहीं दूंगी जगह, समझी तुम? अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से निकल पड़ो। अगर जल्दी यहाँ से नहीं गई तो फिर तुम्हारा पंख पकड़कर जमीन पर घिसटते घिसटते बाहर निकाल दूंगी, समझ गई ना तुम? बुलबुल बहन, मैं ये सोच कर आई थी तुम मेरा सहारा बनोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें तो ये काले रंग पर बहुत ज्यादा ही घमंड है। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। काली बुलबुल, तुम रहना अकेले इस जंगल में। काली बुलबुल, क्या बोली तू मुझे? काली? तुम्हारा गोरा रंग है ना, अपना गोरा रंग तू अपने पास ही रख और यहाँ से निकल जाओ मेरे जंगल से। अरे काली बुलबुल, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जा रही हूँ मुनमुन के पास, वो मुझे सहारा जरूर देगी। फिर कबूतर अपने बच्चों के साथ में मुनमुन चिड़िया के पास जाती है। फिर मुनमुन से बोलती है कबूतर, मुनमुन बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मुनमुन बहन, मेरी मदद करो मुनमुन। वो दरअसल क्या है ना, जिस जंगल में हम लोग रहते थे उस जंगल में अकाल पड़ गया है। उस जंगल के पेड़ पौधे सारे के सारे सूख गए हैं। वहाँ प्यास बुझाने की पानी भी नहीं है। मेरी मदद करो मुनमुन बहन। हम लोग 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग बुलबुल टूनी तोता के पास गए थे, वो मुझे डांट कर भगा दिए अपने जंगल में से। मेरी मदद करो मुनमुन, मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दो मुनमुन। मेरे बच्चे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए मुनमुन, मेरी मदद करो मुनमुन। अरे लूसी बहन, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो लोग नहीं किए तो क्या, मैं करूंगी तुम्हारी सहायता। मैं अभी लेकर के आती हूँ फल तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं ना, मैं अभी आती हूँ लेकर बगीचे से ये फल। मेरा इंतजार करना तुम। फिर मुनमुन चिड़िया फल लाने बगीचे में निकल जाती है। फिर बोलती है मुनमुन, मैं लूसी के बच्चों के लिए ज्यादा भोजन लेकर जाऊंगी। ये बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं। वो तीनों पक्षी कितने बदमाश हैं। इस दुनिया में सिर्फ मतलबी हैं, केवल सब अपने बारे में ही सोचते हैं। ये फल लेकर जाती हूँ जल्दी, उन बच्चों को जोर से भूख लगी होगी। फिर मुनमुन चिड़िया फल लेकर कबूतर के पास आ जाती है। फिर बोलती है मुनमुन कबूतर से, ये लो लूसी, अपने बच्चों को फल दो खाने के लिए। तुम्हारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं ना? हाँ मुनमुन, अभी मैं बोलती हूँ अपने बच्चों को खाने के लिए। बेटा, तुम तीनों ये फल खा लो, तुम लोग को अच्छा लगेगा खाने के बाद। ये लो बेटा, तुम लोग खाओ ये फल। हाँ माँ, अभी मैं खाती हूँ ये फल। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है माँ। चलो बहन, ये फल खाते हैं हम लोग। फिर तीनों बच्चे फल खाने लगते हैं। खाकर बोलते हैं अपनी माँ से, माँ, ये फल खाकर बहुत अच्छा लगा माँ। मुनमुन आंटी से बोलिए ना माँ कि हम लोग इसी जंगल में अब रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। बोलिए ना माँ। मुनमुन, हम लोग को इस जंगल से बाहर मत निकालना मुनमुन। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है अपना कहने वाला मुनमुन। लूसी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी इस जंगल से। तुम मेरे साथ में ही रहना अब से, ठीक है लूसी बहन, अपने बच्चों को लेकर। क्या मुनमुन बहन, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मुनमुन। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि तुम मुझे इस जंगल से नहीं निकालोगी। और हाँ, हम लोग एक दूसरे को हर सुख दुख में साथ देंगे, ठीक है मुनमुन? हाँ लूसी, अब हम लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे खुशी खुशी से और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे।